We solve this paper today, May June 2021. Variant is 5.1. First question of this paper is of combination, permutation and combination. This question is of combination. A bag contains 12 marbles, each of a different size. 8 of the marbles are red and 4 of the marbles are blue. 12 marbles total of different size. 8 are red and 4 are blue. How many different selections of 5 marbles contain at least 4 marbles of the same color? This is the restriction of the question. At least 4 marbles of the same color. We have to select 5 marbles from 12 marbles of different size. We have to select at least 4 marbles of the same color. इसके लिए ऑप्शंस होंगी 8 are red, 8 red marbles and 4 blue marbles. We have to select 5 marbles. 12 marble, total 12 marbles हैं और each of different size. We have to select 5 marbles. Restriction ये है कि at least 4 marbles of the same color. First option of this is we have to select 5. 5 हमने select करनी है. फर्स्ट ऑप्शन ये है कि हम इन 8 में से 8 रेड हैं, इनमें से हम सेलेक्ट कर लेते हैं 8C4. 8 में से 4 सेलेक्ट कर लिए. ये रिस्ट्रिक्शन कंप्लीट हो गई है. अब हमें एक और चाहिए बिकॉज हमने 5 बनानी है, यहाँ 4 है, तो वो 1 जो है ये ब्लू में से एक ले लेंगे. तो यहाँ पे लिखेंगे हम 4C1. तो ये टोटल 4 और 4 प्लस 1 ये 5 हो गई. दूसरी ऑप्शन ये है अब हम ब्लू में से 4 ले लेते हैं और 8 में से हम 1 ले लेंगे तो वो 5 बन जाएंगी. दूसरी ऑप्शन है 4C4 इंटू 8C1. तो एक और ऑप्शन है. अब हम रेड में से रेड 8 है, 8 में से हम 5 सेलेक्ट कर लेते हैं 8C5. अब हमारी रिस्ट्रिक्शन कंप्लीट होगी और हमने 5 सेलेक्ट कर लिए. तो ये ब्लू में से हम कोई नहीं लेंगे तो इस यहाँ 4C0 लिख देते हैं. तो अब हम इनको कैलकुलेट कर लेंगे. कैलकुलेटर से ये फर्स्ट ऑप्शन, दूसरी ऑप्शन, ये थर्ड ऑप्शन है, इसको कैलकुलेट करेंगे तो वो फाइनली वी गेट 344. Question number 2. A company produces a particular type of metal rod. The length of these rods are normally distributed with mean 25.2 cm and standard deviation is 0.4 cm. This question is of normal distribution. Mean length of the metal rod is given, that is 25.2, and standard deviation is given, that is 0.4 cm. A random sample of
500 of these rods is chosen. How many rods in this sample would you expect to have a length that is within 5 cm of the mean length? यहाँ पे first of all we will write that x follows, x is the variable, that is the length of the rod. X follows normal distribution with parameters mu and variance sigma square. And the question, mean length of the rod is 25.2 cm and the standard deviation is 0.4. 0.4 स्केयर लिखेंगे, इस फॉर्मेट में आपने लिखना है. यहाँ पे हमने वेरिएंस शो करनी होती है. 0.5 0.4 is the standard deviation. We will take scale, then it becomes the variance of the variable. So now अब हमने probability को क्या कौन सी फाइंड करनी है? फर्स्ट वी विल actually we have to find the number of rods in the sample which we expect to have a length that is within 0.5 cm of the mean length. So first of all we will find the probability. उसके बाद हम number of expected number of rods जो है वो फाइंड करेंगे. इसके लिए डायग्राम ये होगी बेल शेप डायग्राम. मीन इज 25.2. अब हमने फाइंड करना है फर्स्ट ऑफ वी विल फाइंड द प्रोबेबिलिटी हैव ए लेंथ दैट इज विदिन 0.5 cm of the mean length. विदिन 0.5 cm of the मीन हमारे पास 25.2 cm है और विदिन 0.5 cm, तो 0.5 cm यहाँ पे हम इसमें ऐड करेंगे मीन में, तो वो यहाँ पे आ जाएगी रीडिंग. 25.2 में से 0.5 माइनस करेंगे तो वो लेफ्ट पे आएगी रीडिंग. तो 0.5 ऐड करेंगे मीन में, तो ये यहाँ पे आ जाएगा 25.7. 20 मीन 25.2 है, इसमें से 0.5 माइनस करेंगे तो वी गेट 24.7. Actually we have to find this probability. हमने फाइंड करना नंबर ऑफ रॉड्स, expected number of rods having length within this range. So first of all we will find the probability that lies between 24.7 and 25.7. ये probability हमने फाइंड करनी है, तो we will write it as probability x lies between 24.7 and 25.7. तो फर्स्ट वी कन्वर्ट इट इनटू, इस x को नॉर्मल वेरिएबल x, इसको हम स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे यूजिंग दिस रिलेशन x माइनस म्यू ओवर सिग्मा. तो दिस बिकम्स x becomes z, x minus mu is 25.2 over sigma 0.4. in the same way x minus mu over sigma, इसको हम कैलकुलेट करते हैं. This becomes minus 1.25. After calculation we get this
ये हमारे पास आ जाएगा -1.25, -1.25। इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास आएगा +1.25। अब हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस। तो सो वी कैन राइट इट एज प्रोबेबिलिटी ऑफ 1.25 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ -1.25। इस माइनस को, जो z की वैल्यू नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव बनाएंगे, 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको तो वो पॉजिटिव बन जाएगी। 1.25 माइनस विद इन ब्रैकेट 1 माइनस 1.25। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 1.25 माइनस 1 प्लस 1.25, और ये देखें ये 2 टाइम्स हो गया, दिस प्लस दिस विल बिकम 2 टाइम्स 1.25 माइनस 1। अब हम इसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में से देखेंगे, ये z के अगेंस्ट प्रोबेबिलिटी देखनी है हमने। 1.2 को 5 में देखेंगे, फिर 0 में देख के ऐड करेंगे, 0 उस कॉलम में होता ही नहीं है, 1.2 को 5 में देख लेंगे तो वो हमारे पास, इसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में से देखेंगे तो वी गेट 0.8944 minus 1, so this becomes 0.7888. Now this is the probability within which, ये probability है, ये जो हमने फाइंड की, ये जो इंडिकेट की है। अब हमने नंबर ऑफ एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ रॉड्स बताना है कि वो कितने जो इस लेंथ में लाई करते हैं। तो सो वी विल यूज दिस फार्मूला ऑफ, जनरल फार्मूला ऑफ probability of any event, E for event, is equal to number of successful outcome over total outcomes. Now we have probability this, probability यहाँ पे हम probability लिख देंगे, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, टोटल नंबर ऑफ, वो हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है, रैंडम सैंपल ऑफ 500। तो हमारे पास टोटल आउटकम जो है वो 500 है। तो यहाँ पे हम 500 पुट करेंगे तो हमारे पास एन ए आ जाएगा, जो कि एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ रॉड्स हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी जो हैविंग लेंथ बिटवीन दिस वैल्यू एंड दिस 0.5 from the mean. So we get this 0.7888 is equal to NA over NS is 500. So we get expected number of rods जो है वो 0.7888 मल्टीप्लाइड बाय 500, तो वी गेट 394 और 395, ये दोनों ही आंसर हमारे हो सकते हैं, बिकॉज हमने इसको इंटीग्रल फॉर्म में देना है। तो नंबर ऑफ रॉड्स फाइंड करने वो 394 भी हो सकते हैं, क्योंकि इसका आंसर जो है वो डेसिमल में आ रहा है, तो उसको हम लिख सकते हैं 394 भी कह सकते हैं, 395 भी कह सकते हैं।